In our last conversation with Senior IRS Officer Mr. Rupinder Brar, we spoke about policy and governance. Now let's explore the person behind this officer. From ghazal singing to wellness and even tarot card reading, Ms. Rupinder Brar has a truly multifaceted personality. Let's dive into this side of her in this new conversation. So, welcome again to our channel, ma'am. We're very happy to have you here. Thank you, Bhakti. Last time we spoke about how about your governance, किस तरह से you've been working in the coal ministry and आपने tourism department में भी काम किया, CSR के लिए भी काम किया. But there's also another side to you. It's not just career and responsibilities and you being an IRS officer, but you have a very creative and a very passionate different side to yourself. I believe you're also a ghazal singer. So I wanted to know, how did music become a part of your life? Music was, I think, part of my DNA because my mother is a trained classical singer, Oh, wow. and yeah, and she was in classical music. Her sisters, one of them played sitar, the another was also into singing. My Hmm. grandmother used to sing. So, and my mother's sisters and brothers also, Hmm. incidentally. There's a lot of music in the family, the tabla on the center table, and everybody's singing. So, Oh, wow. so yeah, music has been, I think, so therefore for me, I think I got music from my mother Hmm. before I was born. Okay, so how ghazal, like your mom is a classical singer, how did you get into ghazals and what part of it do you like the most? What part of it would you want others to know about the most? So while being very young, I think my mother did try and instill a little bit more of classical music into me in terms of learning. One would listen and appreciate music. However, in terms of learning, I did try and learn classical music off and on from her, but we would always start on Rag Yaman, और वो यमन पे ही रह जाता था. कुछ classes and all चलती रहे. Then there was, of course, a long gap. There was no formal learning. And off and on again now in the last few years, I have tried to learn at least once or twice a week. I try to do a class. I still do a class once a week on classical music. However, I don't sing that because उसके लिए बहुत साधना, बहुत learning चाहिए और Hmm. बहुत वक्त देना पड़ता है. अच्छा कुछ भी छोटा सा भी कोई पीस प्रोड्यूस करने के लिए तो वो मैं इतना वक्त अभी नहीं दे पाती हूँ. सो आई Hmm. लर्न इट. सुर की समझ और सुर की प्रैक्टिस नीड्स टू कम थ्रू अ राग, but I deliver or whatever little that I try to dabble in is only ghazals because मुझे वो genre बहुत अच्छा लगता है. It gives me immense happiness. Off and on मैंने जब भी कुछ और गाने की भी कोशिश किया तो जितने लोग सुनते हैं उनको वो भी मुझे कहते हैं कि नहीं तेरी आवाज पे somehow गजलें ज्यादा अच्छी लगती हैं. So I think a ghazal is a basically बहुत सारा उसमें फलसफा है. It's philosophy. Yeah. And ghazals, contrary to people, who sometimes seem to think that ghazal सिर्फ एक उदासीन चीज होती है, बिल्कुल उदासीन चीज नहीं है. It's a very introspective medium. I mean, if we look at prose and poetry, I think this is that sort of poetry which is very inside us, kind of. So I enjoy that medium a lot. And Hmm. बहुत अच्छी गजलें लिखी गई हैं वक्त के साथ, आज भी लिखी जाती हैं. So I have enjoyed learning तो them and singing them and on. तो मेरा क्वेश्चन वही सोच रही थी मैं कि क्या आपने खुद भी कभी कुछ गजलें लिखी हैं? नहीं, अभी तक मैंने गजलें नहीं लिखी, लेकिन मैंने अभी हाल ही में एक फिक्शन बुक जरूर खत्म की है. ओह. That is in publication right now, हम्म. and I'm seeing everything, fingers crossed, everything going fine. हम्म. It should have a formal launch sometime in later this year, maybe late September, early October. We are my publisher and I are hoping. So that will be my first proper work, which I will be bringing out very Oh, soon. wow. So, like, would you like to give us an idea? What is the book about? How did it come to life? Well, it came to life from a very interesting. Thanks for asking that question because ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे ऑफिस में Hmm. मेरा कुछ पीरियड बचपन का तंजानिया में बीता, ईस्ट अफ्रीका में. मेरे फादर भी गवर्नमेंट में थे और उनकी डेपुटेशन हुई दार इस्लाम. Hmm. मैं तब स्कूल हाई स्कूल के मेरे ईयर्स थे वो. तो हम जब लौट के आए 1983 में, और उसके बाद मेरा दोबारा कभी जाना नहीं हुआ है वहां पर. Hmm. और मेरे को एक दिन बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया
मैं बॉम्बे में तब पोस्टेड थी और मेरा ऑफिस वाज ओवरलुकिंग द अरेबियन सी, और पानी जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे मेरे बचपन के वो दिन याद आते हैं, बिकॉज दार इस्लाम भी एक कोस्टल सिटी था। हम्म। तो पता नहीं यूं ही ध्यान आया, मैंने कहा वंडर आजकल हाउ दार इस्लाम इज, कई बार आता है, उस दिन भी आया कि आई वंडर हाउ तंजानिया हैज शेप्ड अप, हाउ इट एज अ कंट्री। सो आई स्टार्टेड लुकिंग, जनरली न्यूज देखने लगे गूगल पे। हम्म। तो वहां मैंने देखा कि ब्लास्ट फिशिंग कोई एक फिनोमेना है, तो मुझे नहीं समझ आया कि व्हाट इज ब्लास्ट फिशिंग। तो फिर मैंने हम्म। पढ़ा थोड़ा सा व्हाट इज ब्लास्ट फिशिंग। सो व्हेन आई रेड अबाउट ब्लास्ट फिशिंग देन आई रियलाइज कि दिस इज अ मेजर मैल प्रैक्टिस जो कि कई कोस्टल एरियाज में यूज होती है, जहाँ पे कि क्रूड बॉम्ब, बिल्कुल हैंडमेड से बॉम्ब होते हैं, होममेड टाइप्स, जो कि पानी में फेंके जाते हैं बाय द फिशरमैन, एंड उससे आपका जो फिशिंग का कैच साइज है वो बढ़ता है, और उसके हम्म। बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे आपकी बड़ी सारी फिश बेचारी मर जाती हैं, बच्चे हैं, जुवेनाइल्स हैं, और बहुत सारा वो भी कैच मर जाता है जो आपने तो कैच भी नहीं करना था, आपके किसी काम का भी नहीं होने वाला था, बट वो भी मर जाएगा। साथ में उसके कोरल्स भी मरेंगे, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एक और जो डायरेक्ट ह्यूमंस के लिए भी है कि क्योंकि ये बिल्कुल क्रूड बॉम्ब होते हैं, तो ये हाथ में ही चल जाते हैं कई दफ़े। सो हम्म। उनके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसी के आसपास फिर मेरे को ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक, मेरे मन में कुछ लिखने का हमेशा से था, तो ये सारी चीजों का एक मिश्रण बना कि हम्म। लेट्स ट्राई एंड राइट समथिंग एंड लेट्स मेक, बिकॉज मैं जिसको भी पूछती थी हैव यू हर्ड ब्लास्ट फिशिंग, एवरीबॉडी से ब्लास्ट, व्हाट्स दैट ब्लास्ट फिशिंग। सो आई थॉट हम्म। इट बी नाइस bring out something which the world can do without. We need to हम्म। create awareness about certain things. एंड हम्म। उस तरह से किताब की सोच बनी। फिर उसमें एक लड़की उसकी प्रोटैगनिस्ट है। मेरा हम्म। थोड़ा सा झुकाव लड़कियों की तरफ हमेशा ज्यादा रहता है, हम्म। कि हम उनको एक वी हैव टू शो देम एज स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स। हम्म। और कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है, और वो अपनी सारी स्ट्रेंथ किस तरह से इस पूरी मिशन पे लगाएगी, और एक मिथिकल कंट्री में हम जाएंगे। आइडिया मुझे वहां से आया, लेकिन मैंने आइडिया को कहीं कोई टेरिटोरियल एज सच बेस नहीं दिया है, बिकॉज इट कैन हैव रेलेवेंस एनीवेयर। सो हम्म। उसी पे आधारित कि किस तरह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज मिलकर, अगर हम सोच लें कि हमने किसी मैल प्रैक्टिस को खत्म करना है, तो हम कर सकते हैं। तो वो हम्म। एक मिशन ये पूरी किताब है। Right, right. And I'm pretty sure it must be really, really interesting. तो वेल आई एम होपिंग, लेकिन क्योंकि मेरी पहली है, तो जैसे पहला इम्तहान देने जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको डर लगता है कि पता नहीं कोई एक भी इसको पढ़ेगा या नहीं। तो वो डर आजकल मेरे अंदर भी है हम्म। कि आई किसी को अच्छी लगेगी या नहीं, दो पन्ने पढ़ के तो कोई सो तो नहीं जाएगा और कहेगा क्या लिखा है। तो वो सारे डर मेरे अंदर भी है, बट लेट्स सी। फर्स्ट टाइम एंजाइटी हो रही होगी, I'm pretty sure आपको। एब्सोल्युटली। Yeah, but I hope everything goes well. I hope वो जल्दी से बाहर आए. I hope lots and lots of people do read it. Please do let me know also whenever it comes out. I would also love to give it a read. And Certainly, second page at least. yeah, absolutely, absolutely. And then yeah, coming to your ghazals, मतलब I would be really, really honored, ma'am, अगर आप मुझे कोई गजल अब सुना सकती हैं तो अभी, ओह, if possible. अच्छा। तो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बात करनी आसान नहीं है, तो बात मुश्किल की एक लाइन सुनाती हूँ भक्ति ठीक आपको। है, ठीक है। ये पहले गजल मेहदी हसन जी ने गाई थी, फिर बाद में बहुतों ने गाई है, रूना लैला जी ने भी गाई, पर जो वर्जन मेहदी हसन जी को गजलों का एकदम दी डॉयन फरीदा खानूम जी और मेहदी हसन जी को माना जाता है, काफी मेजर डॉयंस रहे हैं ये लोग। उसके बाद इंडिया में जगजीत जी अलग लेवल पर लेके गए, तो बहुत हम्म। सारे अब तो मैं दो लाइनें उस गजल की गाऊंगी। जी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसे अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी बात करनी। So थैंक यू भक्ति। beautiful, so beautiful. Really. You have such a pretty voice, actually.
आप थैंक यू। गाती हैं आई तो आपकी आवाज एकदम ही अलग हो जाती है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्रेडिट मेरी माँ का है। ओह दैट्स रियली नाइस। एंड ये तो आपने मुश्किल पे सुनाया, व्हाट इज योर फेवरेट गजल ऑफ ऑल टाइम एंड योर फेवरेट गजल सिंगर आल्सो ऑफ ऑल टाइम? एक्चुअली सिंगर्स तो बहुत है फेवरेट। मेहदी हसन जी ऑफ कोर्स, बहुत वेरी क्लोज टू माय हार्ट। एंड जगजीत जी की बहुत सी गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। फरीदा खानम जी की गजलें बहुत अच्छी लगती हैं मेरे को। आबिदा प्रवीण की बहुत सी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सोल से गाती हैं वो। एंड ऑफ हम्म। कोर्स तो से ही आगे बढ़ते बढ़ते सूफी म्यूजिक, जिसको मैं बिल्कुल गा नहीं पाती हूँ, बिकॉज उसके लिए भी बहुत तपस्या चाहिए। यू नीड टू रियली रियली स्पेंड आवर्स हम्म। to train your voice, to get the right notes. हम्म। But सिंगिंग की तो मतलब अलग ही उनका लेवल है। सो बहुत सारी गजलें हैं। वेरी डिफिकल्ट टू पिक एनी वन गजल इस तरह से। वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर एक की अलग पहलू है, हर एक की अलग बात है। इनफैक्ट फिल्मों में कई गजलें बहुत अच्छी गाई गई हैं, हम्म। जो अलग 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 शेप रूप, कोई प्यार से जुड़ी हुई, कोई तन्हाई से जुड़ी हुई, कोई दूरियों से जुड़ी हुई, कोई लॉन्गिंग से जुड़ी हुई, कोई हम्म। देश के लिए हुई, अपने देश प्रेम से जुड़ी हुई। तो इतनी चीजें कही गई हैं बाय डिफरेंट पोएट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स वेरी हार्ड टू से कि कौन सी एक, बिल्कुल हम्म। नहीं चुन पाऊंगी। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड जैसे कि आपने अभी हमें गजल सुनाई, तो आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी ये करती हैं कि लाइक इट्स जस्ट होम हॉबी सॉर्ट ऑफ? अभी इट इज अ हॉबी, लेकिन जैसे किताब एक थी कि भाई कुछ चीजें ना करनी है जीवन में, तो अभी जैसे एक हुई किताब, अब नेक्स्ट मेरा एक मिशन है, किताब और लिखनी है। हम्म। लेकिन एक मिशन है कि कुछ गजलें, 6-8 गजलें कुछ मैं जरूर रिकॉर्ड करूं। तो हम्म। आई होप प्रभु की कृपा होगी तो ये भी ड्रीम पूरी होगी आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल 100% होगी मैम। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि आपका जो करियर है वो इतना हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर है, उसमें इतने सारे लोज एंड अप्स एंड डाउन्स भी होते होंगे। सो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिंगिंग आपको किसी न किसी तरह से उससे कोप अप करने में हेल्प करती है? बिल्कुल, और सिर्फ करियर में नहीं, इवन अदरवाइज जब मैं सिविल्स की पढ़ाई करी थी, आई मस्ट आल्सो शेयर दिस विद यू। मैं ज्यादा, आई एम नाइट आउल। मैं रात को ही पढ़ती थी, तो खाना वाना हम्म। खा के सो जाते थे 10 बजे। तो हम्म। उन दिनों में तो tapes आते थे, जो सीडी टेप्स हुआ करते थे हाँ। टीवी, ये सोनी के, हम उस पे गाने सुना करते थे। अभी सीडी, जो गोल सीडी है, वो भी नहीं आई थी। लेट हाँ। एटीज की बात। ओके। तो यार सकते थे। तो हम्म। सबने जब करा तो मैंने अपने 2 in 1 में अपने 3-4 टेप्स होते थे जो मैं सुनती थी, और हम्म। बकायदा बुक थी और फिर म्यूजिक लगाना। तो मेरे फादर, मैंने उनको दो ही, आफ्टर गेटिंग मैरिड टू माय मदर, उन्होंने म्यूजिक को बहुत पसंद किया एंड ही वाज अ ग्रेट लिसनर। लेकिन हम्म। उनको पढ़ने से जुड़ा हुआ म्यूजिक नहीं समझ आता था। तो उनको पहले तो कहते रहे मुझे, क्या मतलब है, पढ़ो बैठ के, गाने क्यों सुन रही हो साथ में? सो इट टुक मी अ व्हाइल टू एक्सप्लेन टू हिम कि म्यूजिक से मुझे फोकस मिलता है। हम्म। एंड वो रात में जगती थी तो पूरी रात वो म्यूजिक साथ चलता था मेरे। तो चाहे हम्म। वो मोहम्मद रफी चलते थे साथ में, या वो आशा चलती थी, लता जी चलती थी, गजलें चलती थी, कुछ भी चलता था। हम्म। सीरियस क्लासिक चलता था। किशोरी अमोनकर जी को मैं उन दिनों में, और प्रवीण सुल्ताना जी को काफी सुना करती थी। तो कुछ भी चलता था, बट सम फॉर्म ऑफ म्यूजिक was हम्म। always there when I was हम्म। working. So it has actually been so essential to my existence that even now, whether I want to uplift my mood, whether I want to focus, I just put music. Now I come to office, I mostly put महामृत्युंजय का मंत्र, एक शंकर सानी जी की रिकॉर्डिंग है, उसका हम्म। मुझे somehow बहुत अच्छा लगता है। वो बड़ा एक नॉर्मल से वे में गाया हुआ है, वो धीरे 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 चलता रहता है बैकग्राउंड में। हम्म। या मैं कोई अच्छा राग पीछे लगा दूंगी, राग मल्हार या दरबारी, या कोई ऐसा जो एक हैप्पी राग है, वो धीरे से पीछे मेरे कंप्यूटर पे चलता रहता है। तो हम्म। आई थिंक मुझे म्यूजिक सुनने के लिए ना तो कभी अलग समय ढूंढना पड़ा है, और ना ही कोई मूड ढूंढना पड़ा है म्यूजिक के लिए। हम्म। हर मूड है, और हर म्यूजिक आपके मूड को एलिवेट करता है। तो म्यूजिक आपको काम भी कर सकता है और आपका मूड अपलिफ्ट भी कर सकता है। आई बिल्कुल। और एब्सोल्युटली। आज the internet, it's an amazing revolution। आज आप ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, कई बार ट्रैवल करते वक्त मंगोलिया का म्यूजिक, अफ्रीका का म्यूजिक, साउथ अमेरिका का म्यूजिक, आप जगह जगह का म्यूजिक सुन सकते हो आज की डेट में, बिल्कुल। विच इज
ब्यूटीफुल बिकॉज इतना म्यूजिक वर्ल्ड में प्रोड्यूस हुआ है, वेदर हम ट्राइबल ट्रेडिशंस में देखें, रेगुलर अपने सिटी म्यूजिक देखें, अर्बन फोक, आई मीन इट्स जस्ट एंडलेस, एंडलेस, True. एंड इतने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इट्स फैसिनेटिंग, सो इट्स एन अनएंडिंग वर्ल्ड। Absolutely, absolutely. I do agree. Music is the heart and soul of, it could be the heart and soul of a person's life, I believe, if they're interested. And having said that, not just music, you're also into tarot card reading. So, how did that interest develop and क्या role play करता है वो आपकी life में? Like, how did you get into tarot card reading? Because not everybody does that. This is so unique, so different. I'm pretty sure कुछ एक certain level की knowledge होनी चाहिए उसके लिए. So, if you could take us through that. सो एक पिक्चर बनी थी ना, लक बाय चांस, तो इसी तरह से मेरा भी हुआ टैरो बाय चांस। अच्छा, क्योंकि ओके। हम पटियाला पोस्टेड थे, और वहाँ एक छोटी सी दुकान है किताबों की, रीडर्स गैलरी करके, सो एंड मैम कहाँ ऐसे से? ही पटियाला में, अच्छा, ओके। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है पटियाला, तो आई वाज पोस्टेड देयर, हम्म। जो 2000 की बात है। तो ऐसे ही शाम को जैसे निकले, मार्केट गए, तो एक छोटी सी वहाँ बुक शॉप है, बड़ी फेमस वहाँ के हिसाब से, रीडर्स गैलरी। तो जनरली ब्राउजिंग, मुझे पढ़ने का शौक है, तो हर थोड़े दिन बाद जाते थे, कोई एक बुक खरीद लाए। तो वहीं वहां पे मैंने बुक रैक पे देखा, एक बॉक्स टाइप का कुछ पड़ा है, जैसे सेल्फ हेल्प वाले बॉक्स होते हैं ना, उस तरह का बॉक्स, वो उस पे लिखा है टैरो। अब मुझे तो TAROT, टैरो का ना तो मतलब पता था क्या होता है, कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी, उससे हम्म। पहले सुना भी, हम्म। बट इट जस्ट इंटरेस्टेड मी। तो मैंने उसे शेल्फ से उठाया, दैट व्हाट इज दिस टैरो। तो अच्छा, उन दिनों में जैसे आजकल हम हर चीज गूगल कर देते हैं, उन दिनों में नहीं करते थे, इतना अभी फ्रीक्वेंसी नहीं हुई थी यूजेज की, फोन्स पे तो हम्म। बिल्कुल भी नहीं। तो पता नहीं क्यों मैंने ले लिया, मैंने देखा कि क्या ज्यादा महंगा तो नहीं है, 699 या इतने का था, उसमें बुक थी, कार्ड्स थे, मैंने ले लिए, एंड आई हम्म। ब्रॉट देम होम। दे हैव स्टेड विद मी आफ्टर दैट, इट्स नाउ 20 years, ओह वाह। and they have stayed with me, and the same set of cards has stayed with me. I have bought many sets of cards after that, but those remain the cards closest to my heart. वो जब लिए, उनको जब घर लाई, वो बड़ी बेसिक सी किताब थी उसके साथ, लेकिन वो जब पढ़ना शुरू किया, वो somehow it resonated very much with me. मुझे इसेंशली लोगों के बारे में, उनके माइंड के बारे में, अपने माइंड के बारे में भी, और लोग क्यों करते हैं जो भी वो करते हैं, क्यों सोचते हैं जो वो करते हैं, आई थिंक कुछ इनहेरेंट इंटरेस्ट था मेरे अंदर। शायद उस टाइम पे मुझे इतनी उस बात की समझ नहीं थी, लेकिन उन कार्ड्स ने मुझे ये अंडरस्टैंडिंग दी, इन फैक्ट, दैट आई इंजॉय delving into the mental space, हम्म। not only my own mental space but mental space of the others. धीरे 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 फिर वो पढ़ना शुरू किया, खुद पढ़ना शुरू किया, फिर कई आसपास अपने गिनी पिग ढूंढने शुरू किए कि कैन आई रीड योर टैरो कार्ड। Yeah. यूज्ड टू ऑफ कोर्स मेक फन कि टैरट पैरट और इस तरह के मजाक होते। और फिर कई बार ये भी होता था, हाँ अच्छा चल ठीक है, फन के लिए करते हैं, 15-20 मिनट कर लेते हैं, बट 15-20 हाँ। मिनट के जो सोच के आता था, वो अक्सर 2-2.5 घंटे के सेशन भी होने लग गए। So I started enjoying, and what I realized was it was a great medium for introspection. It was a great medium for reflecting. It was a great medium for learning focus, and so it हम्म। just stayed with me. And हम्म। then I had gone to Singapore for a couple of years for my master's in public administration. वहां पे भी बाय चांस हुआ, आई वेंट टू अरब स्ट्रीट फॉर डिनर और समथिंग, एंड बाय चांस हम जिस रेस्टोरेंट में बाहर बैठ के ही खा रहे थे, जो पेमेंट सी होती है, और उसके सामने एक दुकान सी थी, इट वाज लिटिल ऑफिस काइंड ऑफ अ दुकान, एंड उसमें लिखा था वुड यू लाइक टू लर्न टैरो, एंड देयर वाज समबडी हु वाज टीचिंग। मैं यूं ही हम्म। उसके अंदर चली गई, हम्म। क्योंकि वो उस वक्त अंदर गई, जो वहाँ एक यंग सा लड़का था सिखाने वाला, मुझे अच्छा लगा उसका वाइब। मैंने कहा अच्छा हम्म। क्लासेस ही कर लेते हैं थोड़ी सी, तो थोड़ी क्लासेस भी कर ली। हम्म। फिर कुछ और पिक की, जहाँ फिर मैंने जाना, मैंने हर जगह से कुछ अलग किस्म के कार्ड्स पिक कर लेने, बिकॉज इलस्ट्रेशंस बहुत अलग आती हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के कार्ड्स हैं, और हर एक की अपनी विजुअलाइजेशन के हिसाब से कार्ड्स होते हैं। हम्म। सो वो फिर धीरे धीरे ये शौक बनता गया। कई बार ये शौक बहुत पीछे चला जाता है, असाइनमेंट्स की इंटेंसिटी और टाइम, कई बार समय ज्यादा देना पड़ता है अपने ऑफिस के असाइनमेंट्स को, तो उन दिनों में नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल। फिर वो वापस आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो देखो बैक, मैंने ये देखा है कि मैं उनको छोड़ दूं, वो मुझे नहीं छोड़ते। सो दे स्टक टू यू। बट अच्छी बात है, आप अगर इंजॉय करती हैं एंड लाइक दूसरे लोग आपसे अपना टैरो पढ़वाना भी इंजॉय करते हैं, सो आई मीन दैट्स अ गुड आई लव थिंग। आई लव इट। हम्म। एंड मेरा वो शौक
है ना बंदे को, सो वो भी अच्छा लगता है। हाँ, प्लस जैसे मैंने कभी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कराई, तो मतलब मुझे बहुत फैसिनेट करती है चीज कि मतलब एक कार्ड से आप कैसे मेरे बारे में बता सकते हो, या कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे भी आप जो भी आप मुझे बता रहे हो। तो मुझे बहुत फैसिनेट करता है समहाउ ये टैरो कार्ड रीडिंग। हैंड रीडिंग करते हैं लोग, हैंड राइटिंग रीडिंग करते हैं लोग, आई डोंट नो हाउ, जस्ट बॉगल्स माई It's माइंड। whenever you are in Delhi, we can do a reading. Absolutely, I would absolutely love to come, especially for this purpose. Full out. And, yes, ma'am. And apart from that, you're also currently pursuing psychology. So, after so many years in the service and after being so successful already in life, what motivated you to go back to academics इस stage पे आके? सो एकेडमिक्स इन अ वे मेरे साथ रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैं 2009 में वेट टू सिंगापुर, डिड माय मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ पढ़ाई। उसके बाद आई केम टू जॉइन बैक इन मुंबई, then I joined the LLB program in Mumbai University. So again, it took me back to books for a while. Psychology happened partly because of tarot, I should say. I give credit to tarot because it it helped me to understand that I enjoy doing this work. And if I have to do it, then I must become a little more educated about it, because one part is intuition, one part is your inner conscious, which you need to develop, but another part is you need to learn a subject also. You need to understand it from the wisdom of hundreds of years before you. People have done so much research, people have done so much work. It always helps to learn from the academic environment also. So Hmm. psychology from IGNU, I joined, and I've been struggling to finish that masters which I joined. हो ही जाएगी कभी ना कभी खत्म। बिल्कुल होगी। डिस्टेंस का ये फायदा होता है कि आप अपनी पेस पे उसे कर सकते हो, और उसको कोर्स को ज्वाइन करने का एक ही पर्पस है कि आप घर बैठ के भी किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन कोर्स से थोड़ा सा डिसिप्लिन आ जाता है। हम्म। वरना आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बिकॉज समय का अभाव तो होता ही है, हम्म। तो then you tend to be a little less disciplined. So I found कि मैं कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लेती हूँ तो फिर मेरे ऊपर थोड़ा सा डंडा होता है कि ये करना है। सो हम्म। इसलिए उसको ज्वाइन कर लिया, बट द मेन आइडिया वाज दैट one should be a little more aware of all the research that has happened in the field of psychology. Hmm. And ma'am, you're such an interesting person. You have such interesting and diverse, passions and interests. So मुझे honestly ये लग रहा है कि amongst all of this, your responsibility, your career, tarot reading, guzzle, everything, how do you find time for everything? अपने आप ही हो जाता है, मुझे लगता है कि अगर आपकी इंटरेस्ट है ना, तो आप अपने आप कुछ ना कुछ करके ढूंढते ही रहोगे टाइम। Hmm. एंड डेफिनेटली थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशंस आर इम्पोर्टेंट। यू Hmm. डेफिनेटली टू नो दैट टाइम इज लिमिटेड, Hmm. इट इज नॉट देयर फॉर एवर। टाइम तो रहेगा हमेशा, आप नहीं Hmm. रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। तो आपको अपने जीवन का जो भी आपके गिवन नंबर ऑफ इयर्स आवर्स जो भी हैं, आपको उनको थोड़ा सोच के अगर आप बिताएं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Hmm. मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं बहुत समय इनफैक्ट वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी वो प्रोक्रेस्टिनेशन में रह जाती हूँ। और आजकल तो सोशल मीडिया बहुत वक्त ले जाता है इंसान का। आप स्क्रॉलिंग शुरू करते हो, आप देखते रह जाते हो रील्स, बिकॉज Hmm. बहुत रील्स बन के आती हैं। सो काफ़ी समय खा जाती हैं, इन अ सेंस आपका एंटरटेन भी करती हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि आपको जो भी आपको जीवन प्रभु ने दिया है, उसको थोड़ा सा गेनफुली आप अपने आप को अगर ग्रो करें, एक्चुअली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही Hmm. करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। एंड इसमें भी मैं बहुत क्रेडिट मेरी मदर को देती हूँ, भक्ति, बिकॉज मेरी मदर इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। शी इज Hmm. ऑलमोस्ट 86, Hmm. एंड विल नेवर फाइंड हर आइडल इवन नाउ। Hmm. वो कुछ निटिंग में और इतनी क्रिएटिव निटिंग करती रहती हैं, Hmm. अमेजिंग काम करती हैं, तरह तरह के कॉम्बिनेशन, कभी स्कार्फ्स बन रहे हैं, कैप्स बन रही हैं, बच्चों की चीजें बन रही हैं। आई नेवर फाइंड हर सिटिंग आइडल, एंड आई थिंक नाउ व्हेन आई think about it, when I look back, I think in very subtle ways you learn these things from your parents. True. She used to paint, she used to sing, she was a teacher full time, and she was looking after the house also. So I think she was also wearing so many hats. And I think Hmm. कहीं ना कहीं वो सारी चीजें शायद मेरे अंदर भी एक सटल वे में आई हैं वक्त के साथ। I can only think of that as a reason. Oh, that's really, really sweet. I really want to ask you, what does a day in your life look like?
what daily life is. There is nothing like a routine to a daily life, because when you're trying to do so many things, so you can't do everything every day. True. So each of the days is quite different. I Yeah. mean, नींद मुझे बहुत, I love sleeping, so मुझे नींद काफी प्यारी है मेरी, तो मैं कोशिश करके अपने 7-8 घंटे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर Hmm. गलती से एक दिन हो गई कॉम्प्रोमाइज, तो नेक्स्ट डे उसको मेकअप करती हूँ। तो इसलिए नींद नींद इज डेफिनेटली अ रूटीन। एंड उसके अलावा ऑफिस आना मंडे थ्रू फ्राइडे तो बिल्कुल फिक्स्ड है ही, और Hmm. कभी कभी सैटरडे संडे को भी जिम्मेदारियां रहती हैं ऑफिस को लेकर, और ट्रैवल भी रहता है। सो देर इज नथिंग लाइक अ वेरी फिक्स्ड रूटीन, बट एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें जो आपने पकड़ी हैं कि ये करनी है, वो फिर आप करते हो। वो Hmm. आज नहीं करोगे तो कल कर लोगे, कल नहीं करोगे तो परसों कर लोगे, बट वो आपको एक लक्ष्य सा देती रहती है कि भाई आई एम वेटिंग फॉर यू टू फिनिश मी, सो ओके आई एम कमिंग, होल्ड ऑन। But the one statement that I absolutely agree with is need is very important. मतलब एब्सोल्युटली। if you don't sleep well, you don't wake up nicely and then पूरा day ruin हो सकता है आपका. So it's best to go to sleep whenever you find the time to. बॉडी एंड माइंड के लिए बहुत जरूरी है। यू हैव टू लेट योर सिस्टम रेस्ट, Yeah, एंड exactly. वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक, बिकॉज सारी चीजें आपकी सेल्स टिश्यूज एवरीथिंग, आई मीन बायोलॉजिकली यू नीड टू रेस्ट योर सिस्टम, Hmm. एंड दैट इज एसेंशियल। स्लीप के Hmm. बड़े सारे और फायदे हैं विच आई एम श्योर a lot of us know about. Hmm. It heals, it protects you, it rests your mind, Hmm. it helps regeneration of tissues, cells, muscles, everything happens at that time. True, ma'am. True, I agree. And I would also like to know what advice would you like to give aspirants or maybe young people in the service who are thinking about building a very well-rounded personality like you have one. So अगर कोई और भी ऐसा similar सा कुछ चाह रहा है, so do you have any advice for them? एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज मैं कहूंगी, जो जो पहले भी रही होगी अर्लियर जनरेशन में, पर आज की डेट में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज ह्यूमन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स एंड लर्निंग एडवांसमेंट्स आर ट्रेमेंडस। यू मस्ट कीप अपस्किलिंग योर सेल्फ। इफ Hmm. यू थिंक कि आपने एक 22-23 साल में कोई कोर्स करके खत्म कर लिया एंड यू आर गुड फॉर लाइफ, it doesn't work like that. You Hmm. need to constantly upgrade yourself, you need to upskill yourself in whichever profession or field that you choose to work in. The other important thing is to definitely read more than just what you do. If you're a lawyer, don't just read law books. If I'm a tax officer, don't just read tax. If I'm a tourism expert, don't just read tourism books. If I'm a doctor, don't just read medical books. Yeah. You need to do a few other things at least, a couple of Hmm. other things at least. एक कोई स्पोर्ट पकड़िए, एक कोई हॉबी पकड़िए, कुछ अलग लोगों के बीच में बैठिए, सो दैट कॉन्वर्सेशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्योंकि आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। सो Hmm. इट्स इम्पोर्टेंट, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, पढ़ना, ट्रैवल ट्रैवल टीचेस यू अ लॉट। आप अलग Hmm. कल्चर्स को appreciate करना सीखते हो, आप कम जजमेंटल हो जाते हो, क्योंकि आप जब शुरू में किसी भी एक घर में आपका जन्म होता है, आपको एक तरह का माहौल मिलता है। Hmm. यू नीड टू स्टेप दैट, बिकॉज Hmm. अलग अलग फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और सभी फॉर्मेट्स में कुछ बहुत अच्छा होता है। हम ये सोचें कि जो मैंने सीख लिया 20 साल की उम्र तक वही एक जीवन की शैली संभव है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी जीवन की शैलियाँ हैं, और हमें धीरे-धीरे अलग-अलग शैली से कुछ अच्छी चीज़ें अपने लिए पिक करनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यूअसली वर्क ऑन योरसेल्फ टू इम्प्रूव Hmm. योरसेल्फ। I absolutely agree, ma'am. And my last question to you would be, if not a civil servant, what alternate career would you have chosen? Very hard to say, because life has been spent now, the larger part of working career at least, in the government. So very hard to say what would I do away from the government. But a few things now that if I look back कि मैंने क्या क्या अपनी चीजें develop की, so maybe a lawyer, because I Hmm. enjoy reading legal work and arguing also around it, or maybe a counselor, a mental wellness coach, because I love doing that part of my, whenever I get time to do a little bit of tarot readings and counsel friends. So maybe a mental wellness coach, Hmm. or maybe sometime, now that you're asking, maybe a musical chef, ताकि म्यूजिक भी चलता रहे और खाने भी अच्छे बनते रहे। Oh, So wow.
No, but again, you have so many options because you've been doing so much. आपकी life इतनी interesting रही है, and you sound like a really really interesting personality. So I'm definitely sure आपके पास बहुत सारे career options हैं. I'm pretty sure tarot card reading could also be one of them. Absolutely. वो काउंसलर का हिस्सा ही बन जाता है वो टैरो कार्ड रीडिंग एंड आई डू होप कि आगे चल के मैं थोड़ा इसको और डेवलप कर पाऊँ बिकॉज मुझे एक्चुअली भक्ति मोर देन एनीथिंग अबाउट अपने को तो खुशी जो मिलती है करने में बट एवरी टाइम जब आप किसी की रीडिंग करते हो और उसके जो छोटे छोटे कोई कॉबवेब्स कोई कंफ्यूजन कोई डिलेमास होते हैं एंड यू आर एबल टू हेल्प समबडी टू वॉक आउट ऑफ दैट वो बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है True. so therefore it's very close to my heart but God is kind is all I can say. God is kind and इतना कुछ छोटा 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 करते 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 कुछ कुछ अपने अंदर कोशिश रहती है कि बंदा डेवलप Hmm. करे अपने अंदर. Right, ma'am. And with that, we wrap up this conversation. I had a wonderful time speaking with you. So much things, so many things मुझे पता चली जो कि मेरे लिए भी new थी, like blast fishing, for example. And I had a lovely, a very, very refreshing time speaking with you today. Thank you so much for joining me, and I would love to keep in touch with you. Thank you, Bhakti. Thank you for giving me the platform. Thank you for giving me the time and letting me speak so freely about how I feel on a few things. Yeah. Thank you Thank you. so much, ma'am. We'll meet again soon. We'll join again soon. Thank you. Certainly. And Bye-bye. to Delhi for your tarot session. Definitely, I'll plan my next trip very, very soon. All Okay, right. ma'am. Thank you so much. Bye. This was a truly refreshing experience and a truly refreshing conversation with such a multifaceted personality. Thank you for watching Indian Masterminds. Please like, share, and subscribe. This is Bhakti Kothari signing off.